Students, today we are going to discuss about the excretory products and their elimination. This is chapter 19. In this chapter, we are going to discuss about there are certain types of harmful substances which are produced in our body during various metabolic processes. So what are these harmful substances? These are like ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, and there are certain ions also like sodium, calcium, potassium, phosphate, sulfate, etc. You have heard the name of all these ions. So these substances are produced in our body during the various kinds of metabolic activities, and these are not useful in our body. So that's why we have to, or you can say our body have to remove them either totally or partially. तो इनको पूरा निकाला जाना होता है या फिर इनको हम partially निकालते हैं. And in this chapter we are going to discuss about, or you can say we are going to learn about the various kinds of mechanism of elimination of these substances. And there are these common nitrogenous waste substances which you are going to study in this chapter, which are found in which are present in the various animals like ammonia, urea and uric acid. So these are the major forms of nitrogenous waste you have to remember. तो आपको ये तीन names जो हैं वो याद रखने हैं, ammonia, urea and uric acid. ये वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स में अलग अलग पाए जाते हैं, सब में एक ही नहीं पाए जाते. एंड अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक. तो देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दीज थ्री excretory substances. So I am going to explain you one by one. Here this is the chart, it is given here, and I am going to explain you. Like first is the ammonotelism. What do you mean by ammonotelism? Ammonotelism means these are those animals which excrete ammonia in the form of excretory substance. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द यूरियोटिलिज्म. यूरियोटिलिज्म मीन्स वो एनिमल्स जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, एंड यूरिकोटिलिज्म मीन्स दोज एनिमल्स विच एक्सक्रीट्स द यूरिक एसिड. तो जो जिस टाइप का उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से हम उनको नेम दे देते हैं. तो अमोनोटिलिज्म that means excretes ammonia, ureotilism means excrete urea, and uricotilism means excrete uric acid. Now in which kind of animals these all three kinds of excretory substance are produced in their bodies? तो कौन कौन से एनिमल्स हैं वो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट अमोनियोटिलिज्म, दैट मीन्स ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, दे आर लाइक प्रोटोजोवंस, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स. यू हैव स्टडीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन द एनिमल किंगडम, तो आपको वो सारे एनिमल्स याद होंगे. तो इकानोडर्म्स, बोनीफिशेस, उन सब में अमोनिया जो है वो एक्सक्रीट होता है. एंड जो यूरियोटिलिज्म है दैट मीन्स यूरियोटिलिज्म जिसमें कि यूरिया एक्सक्रीट होता है. बेसिकली मैमल्स आर देयर and certain cartilaginous fishes and amphibians excrete the urea, and uric acid is excreted by the terrestrial reptiles, and that means वो reptiles जो land पर रहते हैं, not in water, and all the birds and insects, ये सारे uric acid excrete करते हैं. तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस डिफरेंस, है ना. आपके माइंड में ये चीज़ भी आ सकती है कि सारे एनिमल्स एक ही चीज़ को एक्सक्रीट क्यों नहीं करते. वाइल देयर इज़ अ डिफरेंस amongst these excretory substances in various organisms, so there is a reason behind everything. तो यहाँ पर भी कुछ रीज़न है. फॉर एग्जाम्पल अमोनोटिलिज्म, दैट मीन्स अमोनिया, एंड हमने अभी बात की दैट अमोनिया इज़ अ हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस. तो बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है, यू कांट होल्ड इट इन योर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब बहुत लंबे समय तक आप अमोनिया को बॉडी के अंदर नहीं रोक के रख सकते, अदरवाइज बहुत ही फेटल या बहुत ही डेंजरस हो जाएगा पर्सन के लिए. एंड मोस्टली ये टॉक्सिक तो है ही, साथ साथ इसको बहुत सारा वाटर भी चाहिए होता है एलिमिनेट करने के लिए. दैट मीन्स टू एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी, मीन्स अगर 1 ग्राम अमोनिया आपको अपनी बॉडी से एक्सपेल करना है तो यू नीड 300 to 500 ml ऑफ वाटर. तो दैट मीन्स इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू फ्लश इट. बॉडी से बाहर निकालने के लिए इसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और ये टॉक्सिक भी है बहुत ज़्यादा. एंड अगर हम बात करें यूरियोटिलिज्म की, तो दे नीड ओनली 50 ml of water, and in comparison to ammonia it is less toxic, so you can hold it in your body little bit more time, more duration. And if you talk about the uricotilism, it needs about 10 ml of water and 1 gram of, I am talking about the expulsion of 1 gram of uric acid, कि 1 ग्राम अगर निकालना है तो 10 ml चाहिए यूरिक एसिड को निकालने के लिए. एंड इट इज़ द लीस्ट टॉक्सिक, मीन्स अगर ये बॉडी में काफ़ी टाइम तक भी पड़ा रहे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम. एंड वाटर भी आप देख रहे हो कितना कम चाहिए इसको. एंड अब कम नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट टॉक्सिसिटी की बात जैसे मैंने बोली, तो टॉक्सिसिटी मीन्स कितना वो टॉक्सिक है, हार्मफुल कितना है ना, कितना पॉइजनस है. तो अमोनिया बहुत ज़्यादा है, यूरिया जो है मीडियम है, यूरिया हम सबकी बॉडी में होता ही है, आप देखो मीडियम है, एंड यूरिकोटिलिज्म लो है. एंड अनदर थिंग इज़ कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वेयर इट फॉर्म्स. तो बेसिकली जो अमोनिया है इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड इन लिवर सेल्स,
अमीनो एसिड के डीएमिनेशन से बनता है. And urea is also formed in the liver cells by detoxification of ammonia, and mainly formed, जो यूरिक एसिड है ये mainly formed from purines in liver cells. तो ये सारी चीज़ें हो गई. अब जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट अमोनिया रिक्वायर्स मोर वाटर, 300 to 500 ml वाटर. तो ऑल दीज एनिमल्स आर एक्वेटिक. ये सारे एनिमल्स तो पानी में रहते हैं, तो इनको पानी की कोई कमी नहीं होती, इनको फटाफट पानी ईजिली मिल जाता है. तो इसलिए इनकी बॉडी को एडेप्टेशन है कि इनके अंदर अमोनिया होता है, सो दैट इट गेट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेरी इजीली एंड एक्सपेल इट. तो ये आराम से उसको एलिमिनेट कर देते हैं. यूरियोटिलिज्म हम लोगों के अंदर, जैसे मैंने बताया, हम लोग मैन के अंदर है, कैटेजस फिशेस के अंदर है, एम्फीबियंस के अंदर है. तो वाटर अवेलेबिलिटी हमें भी इजीली हो जाती है, बट नॉट लाइक दैट द एनिमल्स विच लिव इन टू द वाटर. तो हमारे में थोड़ा सा होल्ड करने की कैपेसिटी है कि इसको हम रख सकते हैं यूरिया को, और हमें उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता. लेकिन अब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आप इसे नहीं होल्ड कर सकते. एंड यूरिकोटिलिज्म बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, दैट मीन्स दीज रेप्टाइल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लैंड, एंड ऑल्सो बर्ड्स. तो आपको पता है बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, इनको वाटर अवेलेबिलिटी इतनी है नहीं, क्योंकि इतनी आसानी से इनको वाटर नहीं मिलता है कहीं भी. तो इनको बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए इसको होल्ड करके रखना पड़ता है, स्कीटी सब्सटेंस को अपनी बॉडी के अंदर. एंड एक्सपेल करने के लिए भी इनको बहुत थोड़ा पानी मिलता है, मतलब उस थोड़े पानी में ये डिजॉल्व करके वो उसको एक्सपेल कर देते हैं. इफ़ यू हैव सीन द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ द बर्ड्स, तो यू विल फाइंड दैट ये बहुत ही ड्राई सा होता है. तो दैट मीन्स वो पानी को कंजर्व करके रखते हैं. तो बहुत थोड़े अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़ा सा भी पानी हो तो ये यूरिया को बॉडी से, यूरिक एसिड को बॉडी से निकाल सकते हैं. लेकिन अगर आपको तो अमोनिया है और थोड़ा सा पानी है, तो यू कांट एक्सपेल इट फ्रॉम योर बॉडी. तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे. नेक्स्ट थिंग इज़ द व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट. अब नाइट्रोजनस वेस्ट के और क्या फीचर्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट द अमोनिया. So ammonia is a very high toxic substance and it is very much soluble in water. बहुत जल्दी, बहुत easily पानी में डिसॉल्व हो जाता है. तो दिस इज़ गुड थिंग अबाउट इट कि फटाफट पानी में डिसॉल्व हुआ एंड इसको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. और एडवांटेज ये होता है कि इसमें बहुत थोड़ी एनर्जी लगती है बॉडी की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. प्रॉब्लम की अगर बात करें, प्रॉब्लम क्या होती है, तो देर इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ वाटर फॉर रिमूवल. जैसे मैंने आपको बताया कि अमोनिया बहुत सारा पानी मांगती है बॉडी से बाहर निकलने के लिए. एंड नेक्स्ट इज़ द यूरिया. यूरिया मीडियम टॉक्सिक है, मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत भी नहीं है, काफ़ी समय तक इसको रोक सकते हो आप बॉडी में. एंड सॉलिबिलिटी ऑफ वाटर में जस्ट ओके है, मतलब ठीक ठीक सा है, सॉलिबल हो जाती है. लेस टॉक्सिक है, मीन्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, और बॉडी के टिश्यूज़ में बिना किसी नुकसान के काफ़ी टाइम तक इसको आप रख सकते हैं. और पानी भी बहुत ज़्यादा इसको नहीं चाहिए, मीडियम अमाउंट में पानी चाहिए. ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए. एंड व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज? दैट इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी बहुत चाहिए इसको. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द लो टॉक्सिसिटी ऑफ यूरिक एसिड. तो अब टॉक्सिसिटी बहुत लो है यूरिक एसिड की. एंड सॉलिबिलिटी पानी में भी बहुत पुअर है, पानी में जल्दी से सॉलिबलाइज नहीं होता. मैंने बताया आपको बर्ड्स वगैरह का आप एक्सक्रीटरी सब्सटेंस देखेंगे तो वो पानी उसके साथ बहुत कम होता है, तो बहुत सॉलिबिलिटी बहुत कम है उसकी, बट लीस्ट टॉक्सिक है. और ये बहुत सारे लंबे समय तक ये बर्ड्स जो अपनी बॉडी में इसको रख सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. एंड इसका डिसएडवांटेज है तो लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इसको भी बॉडी से एक्सपेल करने के लिए. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द वेरियस नाइट्रोजनस वेस्ट. एंड इस सब के बीच में एक चीज़ और भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि वी हैव स्टडीड द एनिमल किंगडम, एंड इन दैट एनिमल किंगडम यू हैव स्टडीड अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स लाइक प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड उनके अंदर कैसे एक्सक्रीशन होता है, बिकॉज यू हैव स्टडीड देयर दैट देयर आर वेरियस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. आपको नाम भी कुछ एक के याद होंगे, बट इफ़ वी बिगिन विद प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ में अमीबा जैसे कि आता है. तो आपने पढ़ा हुआ है कि अमीबा जो है वो अमोनिया एक्सक्रीट करेगा और साथ में जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट करेगा, बिकॉज इट डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ स्पेशल ऑर्गन. कोई भी नाक वाक, आँख, कान आपने देखा उसको नहीं होता है. उसी तरीके से कोई बॉडी का स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी विडनी नहीं होती उसके अंदर. लाइक पोरीफेरा भी वैसे ही होता है, वो भी अमोनिया एक्सक्रीट करता है और वो भी सिंपल जनरल बॉडी सरफेस. अगर जनरल बॉडी सरफेस का मतलब सपोज दिस इज़ द एनिमल एंड ये यहाँ से जो भी आना जाना है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ये बाहर चला जाता है, और जैसे कोई चीज़ अंदर आनी है तो अंदर आ गई, बाहर जाना है तो बाहर चला गया. तो दिस इज़ कॉल्ड जनरल बॉडी सरफेस. लाइक दैट प्लेटीहेल्मिन्थीज में अगर आप आएंगे तो देयर आर सर्टेन चेंजेस, बिकॉज इन प्लेटीहेल्मिन्थीज देयर आर सर्टेन सेल्स नोन एज फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया. दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी. थोड़ा बहुत डिफ्यूजन से भी जाता है बॉडी सरफेस के,
बट बेसिकली प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स इसमें पाए जाते हैं. एंड इफ़ यू कम टू द निमेटोडा, दैट मीन्स जिसमें स्कैरिस पाया जाता है, तो वो अपनी बॉडी में स्पेशल तरह के सेल्स रखते हैं दैट आर कॉल्ड रेनेट सेल्स, RENET, रेनेट सेल्स होते हैं. तो उनसे वो रिमूव करते हैं. ऑफ कोर्स जनरल बॉडी सरफेस से भी थोड़ा बहुत पानी और आयंस भी जाते हैं, because you have to remember that the function of kidney or any excretory surface is not only to remove the excretory substances but also remove the harmful ions also. तो पानी का, सॉल्ट का और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का, इन सबको एक्सपेल करना या इनको बैलेंस को बनाए रखना काम होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का. तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को एक्सक्रीट करने के साथ साथ वो वाटर एंड आयंस का भी बैलेंस बनाकर रखते हैं. देन कम टू द एनिलिडा, जिसमें कि अर्थवर्म आता है. तो यू ऑल स्टडीड दैट अर्थवर्म हैज़ अ स्पेशल ऑर्गन दैट इज़ कॉल्ड नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया 3 टाइप्स के होते हैं, यू हैव स्टडीड. तो वो नेफ्रीडिया के थ्रू अपना एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बॉडी के बाहर एक्सपेल करते हैं. एंड लीच भी अगर आपने नाम सुना हो, जोंक का, तो वो भी नेफ्रीडिया के थ्रू करता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस रिलीज. एंड इफ़ यू कम टू द आर्थ्रोपोडा, दैट मीन्स जिसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, उसमें मालपीजियन टिब्यूल्स मैक्सिमम इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, बट वेरियस इंसेक्ट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑल्सो. तो बहुत अलग अलग तरह के, क्योंकि बहुत आर्थ्रोपोडा इज आपको पता है बिगेस्ट फाइलम है, तो उसमें बहुत सारे क्लास और सब क्लासेस हैं, तो उनमें डिफरेंट एनिमल्स हैं, तो उनके अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी जो हैं वो पाए जाते हैं. तो जितने हमारे सिलेबस में हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ओनली. लाइक एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स आर ऑल्सो एक्सक्रीटरी, you can say, organ, and they are present in the prawns. Prawns comes into the crustaceans. तो crustaceans में जिसमें कि prawn आता है, वो अमोनिया एक्सीट करते हैं, बट उनका नाम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का क्या है, एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड. ये केवल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ही नहीं निकालते, बल्कि रेगुलेट करते हैं आयंस को और वेरियस काइंड्स के फ्लूइड्स को. तो दीज आर द सम वेरियस एनिमल्स which excrete different kinds of excretory substances with the help of different kinds of excretory organ also. So this is all about it. I hope you understand it well, and in next topic we will discuss some other things.